السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج یوم دفاع ہے، 6 ستمبر ہے، لیکن یہ یوم دفاع 1965 کی مناسبت سے تو اہمیت رکھتا ہی ہے، لیکن دفاع جو ہے پاکستان کا جغرافیائی خاص طور پہ وہ تو 1 اکتوبر 1947 سے ہی ہو رہا ہے، جب کشمیر کے دفاع کے لیے پاکستان کی فوج پہلی دفعہ اس نے دفاع کے لیے آگے بڑھی، اور یہ دفاع اب مختلف شکلیں اختیار کر رہا ہے۔ اب جو دفاع ہے وہ صرف جغرافیائی نہیں رہا، بلکہ نظریاتی اور ساتھ ساتھ اب ملک کے اندر بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ انتہا پسندی کے خلاف، دہشت گردی کے حوالے سے، اور پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، بے روزگاری اور معاشی، اس کا بھی تو دفاع کرنا ہی ہے، اور ملک کو آگے بڑھنا ہے تو ان سب چیزوں کو لے کے ہی بڑھا جا سکتا ہے۔ تو آج یوم دفاع کے موقع پہ ہم 2 سے 3 ایشوز پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے تعارف خالد بیگ صاحب کا، جو سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کریں گے، اور بات کریں گے ISPR کے سربراہ کی پریس کانفرنس جو انہوں نے کل کی، اور ساتھ ہی اس پہ بھی بات کریں گے کہ بھارتی جو تجزیہ کار ہیں، سو کالڈ میجر گورو آریہ، ان کا صرف ایک ہی پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے جو پاکستان کو لے کے جو اپنا چیزیں بیچتے رہتے ہیں، منجن بیچتے رہتے ہیں، یہ کہنا چاہیے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے خالد بیگ صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بیگ صاحب، یوم دفاع جی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سب 6 ستمبر 1965 اور شاید یہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے ہوا، لیکن اگر ہم آج دیکھیں چیزوں کو، جیسے میں نے تمہید باندھی ہے، جی تو میرا خیال ہے دفاع تو جب سے پاکستان بنا ہے اس کے وقت سے شروع ہو گیا، اس کے وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ اس کی آپ نے بالکل صحیح بات کی، اکتوبر، بلکہ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ پاکستان کے دفاع کا آغاز جو ہے 14 اگست کے وقت سے ہی شروع اس لیے ہو گیا تھا کہ اس میں جو لارڈ ماؤنٹ بیٹم کی خاتون تھیں، خاتون خانہ، اور نہرو نے مل کے جو ایک عین وقت پر ایک فیصلہ 24 گھنٹے کے بعد کرایا تھا، جو پنجاب کے اندر گرداسپور، فیروز پور کے علاقے جو تھے، یہ اچانک جو ہے جو مسلم اکثریت والی آبادی تھی، اور وہاں کے مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ علاقے جو ہیں یہ انڈیا میں شامل ہوں گے، تو انہوں نے اعلان کر دیا باؤنڈری کا کہ جناب یہ علاقے انڈیا میں شامل رہیں گے، جس پہ اس کے بعد پھر جو قتل و غارت گری ہوئی اور جو جتنی جانوں کا اور نقصان ہوا، اور پھر جو ہماری خواتین بچیاں اس وقت اغوا کی گئیں، ان کو عصمت دری کا نشانہ کی بنایا بنیاد جو رکھی گئی وہ ایک فیصلے نے کی، جو تبدیل کیا گیا، وہ روٹین، اچھا اس کے ادروائز بعد ہاں نہ ہوتا، کیونکہ دیکھیں سرحد تو ہماری سندھ کے ساتھ بھی تھی اور چیزیں بھی تھیں، لیکن وہاں یہ نہیں واقعات ہوا نہیں ہوئے، نا، صرف نہیں ہوا۔ پنجاب کے اس حصے میں اچھا ہوئے۔ اس میں وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ گرداسپور، فیروزپور جو ہے وہ وہاں سے ایک تو وہاں پہ 3 ہیڈ ورکس تھے، اور اس کا جو اگر وہ ہیڈ ورکس پاکستان کے حصے میں آ جاتے تو پاکستان جو ہے زرعی طور پر اس طریقے سے جو مقبوضہ کشمیر سے دریا آ رہے تھے ان کا محتاج نہ ہوتا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر یا ریاست جموں و کشمیر جانے کا راستہ بھی اسی علاقے سے ہی ہو کے گزرتا تھا، اس کو محفوظ کیا گیا۔ اچھا اب یہ اس کی سازش کو بنیاد رکھی جا چکی تھی، جس کے بعد 12 اکتوبر 1947 کو انڈیا نے اپنی فوج جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر میں اتار دی۔ تو پھر وہ اس وقت جو لڑائی ہوئی، جو 1 سال تک جنگ جاری رہی، نہ وہ انڈین میڈیا کا بھی اس پہ بات کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس میں 1 سال کی جنگ میں باقاعدہ جو انڈین ملٹری انٹیلیجنس ہے، پہلے بھی آپ کی اسی اسٹوڈیو میں بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے اپنی ہائی کمانڈ کو باقاعدہ رپورٹ دی، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، کہ اگر جنگ کو مزید جاری رکھا گیا تو انڈین آرمی کا مورال جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، اور باقی ماندہ کشمیر بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اور انڈین آرمی کا بہت بڑا نقصان بھی ہوگا۔ تو یہ دفاع ہی تھا جو اس وقت پاکستان کی آرمی نے اپنے محسود قبائل کے ساتھ کے مل کے کیا۔ اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے، ایک اور بڑا اہم دفاع جو پاکستان آرمی نے کیا، وہ ہے 9 اپریل 1965۔ 9 اپریل 1965 اس لیے بھی اہم ہے کہ اس سے ایک دن قبل جو رن آف کچھ کا علاقہ ہے، جو پاکستان کا علاقہ تھا، وہ ایک دریائی اپنا سمندری کٹا پٹا علاقہ ہے، اور چونکہ اس میں سمندر کافی اندر تک آیا ہوا ہوتا ہے، کبھی وہ سمندر اتر جاتا ہے، کبھی چڑھ جاتا ہے، تو اندر تک اس کی ساری اس کی آئی ہوتی ہیں پانی کی لہریں جو ہیں۔ تو وہاں پر ہمارے اس وقت جو 25 کے قریب پاکستان رینجرز کے جوان تھے، ان کو حملہ کر کے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، جس کا جواب پاکستان آرمی نے اس طریقے سے دیا کہ 2 مہینے کے اندر وہاں ان کا پورا جو ایک اپنا ڈیو تھا، اپنا ٹینکوں کا آرمڈ ڈیو تھا، اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔
और फिर बीच में ब्रोकरी की बरतानिया ने, अमेरिका ने, अच्छा जनाब बंद कर दें ये वो, और वो इस बुनियाद पर हुआ कि पाकिस्तान ने अपना वो सारा इलाका इंडिया से वापस ले लिया जो कि 910 किलोमीटर स्क्वायर इलाका था, और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब अफसोस इस बात का कि हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे नौजवानों को, हमारी नस्लों को उसके बारे में कोई बताता नहीं, उसका जिक्र ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि मैं वही बात कर रहा हूँ। मतलब है कि ये देखिए, वो भी एक पाकिस्तान का दिफा था ना, किसने किया? पाकिस्तान आर्मी ने किया, और वो एक बहुत बड़ी शिकस्त थी इंडियन आर्मी को। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं ये जो 1965 में सबसे अहम चीज़ जो है उसमें वो जो JN चौधरी जनरल है उसने एक स्टेटमेंट दी, वो भांग पिए हुए नहीं था, मतलब एक वो उसने कोई नशा नहीं किया हुआ था, कि उसने बाकायदा आलमी मीडिया, अपने नुमाइंदे और जितने भी सहाफ़ी थे उनको कहा 5 तारीख की शाम को कि जनाब कल 6 सितंबर जो है वहाँ हम उसका जो फतह का जाम है लाहौर को पर कब्ज़ा करने का, वो हम लाहौर जिमखाना में पिएंगे, और आप भी वहाँ से, आपके साथ वहीं मुलाकात होगी। और उस पर फिर खबरें भी बनी, और उसके बाद कहा उसने कि 7 सितंबर को हम जो सियालकोट है उस पर कब्ज़ा कर लेंगे, और तीसरे दिन हम पाकिस्तान का बहुत सारा पंजाब का हिस्सा जो है वो बाकायदा कब्जे में ले लेंगे, फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान से कि आया पंजाब का ये हिस्सा वापस चाहिए या आप कश्मीर जो है उस पर हमारा कब्जा कबूल करते हैं। मतलब ये उस वक्त का उसकी बढ़त थी। और फिर जो कुछ हुआ पहले ही दिन इंडियन आर्मी का जो जानी नुकसान हुआ, वो तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे ना कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है इस तरीके से दलेरी से और अपनी जान की, देखिए असल बात ये होती है कि आप अपनी जान देने के लिए जब तैयार हो जाते हैं ना, शहादत के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये जो जज्बा है इसको ना तो तोप के गोले से ना ही वो बंदूक की गोली से रोका जा सकता है। और यही कुछ हुआ। हमारे नौजवानों ने, जो नौजवान थे उस वक्त फ़ौज के अंदर, अफसरान भी और जवान भी, उन्होंने जिस दीदा दलेरी से और जिस बहादुरी से उस वक्त पाकिस्तान का दिफा किया, और उसको फिर एक और अफसोस बना चीज़, उसको रिलेट कर दिया जाता है उससे पहले 10 दिन पहले जो अखनौर में और जो रियासत जम्मू और कश्मीर में पाक फ़ौज का जो एक चल रहा था वहाँ पे सिलसिला, उसके हवाले से कि जनाब ये जंग तो जो है पाकिस्तान ने शुरू की थी। भाई पाकिस्तान ने शुरू नहीं की थी, जिस वक्त रन ऑफ कच्छ का ये चल रहा था और उसका बाकायदा 30 जून को जाकर 1 जुलाई को मुआहदा हुआ, उस जुलाई में, और उसमें फिर आप ये देखिए सितंबर में अरसा ही कितना है। तो उस दौरान जो है फिर पाकिस्तान के पास एक रास्ता था कि अगर वो रन ऑफ कच्छ पर अपनी फ़ौज कशी कर सकता है तो फिर हमारा इलाका है मुतनाज़ा जो रियासत जम्मू कश्मीर है, तो हम वहाँ पर अपनी कार्रवाई, अपना इलाका वापस क्यों नहीं ले सकते? तो वो पाकिस्तान का हक था। इसको मैं अगर यूँ कहूँ कि मैं ताकतवर हूँ, आपका मैं मोबाइल ले लेता हूँ, हर एक को पता है जितने 10 लोग बैठे हैं, हाँ भाई ये आपका मोबाइल है, लेकिन आप इस काबिल नहीं है कि लें, लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे मैं वापस लूँ, जब भी मौका मिलेगा आप वो वापस लेंगे मेरे से। तो क्या पाकिस्तान का हक नहीं बनता था? और फिर जो 1965 की जंग है उसमें आप इंडियन जो किताबें लिखी हुई हैं वो भी यही कहते हैं कि ये कोई इंडिया की फतह नहीं थी, बहुत बड़ी नाकामी थी। उसकी वजह क्या है? उस वक्त जो पाकिस्तान की नफरी थी सिर्फ 60,000 के करीब थी अपने हमारे मशरकी बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान ने, जिसने पाकिस्तान का दिफा किया, और इसके बरक्स जो है उसकी 1,20,000 की नफरी थी जिसके साथ जो है वो बाकायदा पाकिस्तान पर हम एक लश्कर जरार था ना जी, दुगनी तादाद में, ठीक है। तो फिर पाकिस्तान ने अपना दिफा किया ना, तो हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे प्रिंट मीडिया में उन लोगों को कुछ थोड़ा ख्याल करना चाहिए जो कहते हैं कि जनाब इसकी जंग की छेड़खानी तो पाकिस्तान ने खुद की। भाई जब आप उसकी बात करते हैं, अखनौर की जंग की पहले बात करते हैं, ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात करते हैं, फिर पहले रन ऑफ कच्छ की बात करें जो उसी में हुआ, उसी साल हुआ और चंद महीने पहले हुआ, उसका हम जिक्र ही नहीं करते। तो ये कामयाब दिफा ही था ना जो पाक फौज ने किया। और फिर आपने बिल्कुल सही कहा, उसको हम अगर आज की सूरत हाल में लड़ें तो उसमें देखें तो आप ये देखिए कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि इंडिया ये जुर्रत भी कर सके कि वो किस सरहद से हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करे। उसे पता है कि उसको जो जवाब मिलेगा वो इतना मुंह तोड़ होगा कि उसको याद रखें। इसी वजह से जो अब जो जंग की और जो सूरत हाल है वो और शक्ल अख्तियार कर गई है। अब प्रोपेगेंडा है, दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है, प्रॉक्सी वार है ना जी, एहसास महरूमी का बहाना है, जवाब बनाया जाता है, बयानी है, जाली बयानी। अच्छा, जो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल ISPR के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने की, और उन्होंने जो किया, जो कहा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और आज हम जब बात कर रहे हैं कैसे देखते हैं कि ये जो अब हमारे अंदर जिस तरह के प्रॉक्सी वॉर्स हमारे पे मुसल्लत कर दी गई है, उसका जवाब जिस तरह के देने की कोशिश की जा रही है, तो क्या अकेली फ़ौज तो नहीं दे सकती जब तक उसे पब्लिक की सपोर्ट हासिल देखिए पब्लिक की सपोर्ट फ़ौज को हासिल है,
सोशल मीडिया पे अगर प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक तो बदकिस्मती ये है कि जैसे अभी आपके साथ बात भी हो रही थी कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम अपनी अकीदत को इबादत की शक्ल दे देते हैं और हम लीडरों को उनके बुत तराश लेते हैं और हम उनकी नाउज़ुबिल्लाह उनकी पूजा शुरू कर देते हैं और उनके लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में जहाँ जमहूरी नॉर्म्स हैं, जहाँ बाकायदा सही मानों में जमहूरियत चलती है, वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। वहाँ किसी को इल्म ही नहीं होता कि आप किस पार्टी से हैं, मैं किस पार्टी से हूँ। लोग जाते हैं खामोशी से वोट डाल देते हैं और ऐलान हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में तो हालत ये हो गई है कि जैसे जो सियासी जमातों के दरमियान जो है वो इलेक्शन कैंपेन ऐसी बन जाती है और पोलराइजेशन इसी वजह से बढ़ रही है। और इसमें हमारे सियासी लीडरान का भी कसूर है, उनके जो लब लहजा है उसका भी कसूर है कि जिस तरीके से वो नफ़रतों का इजहार करते हैं अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ और उससे जिस वक्त लोगों के जज्बात मजरू होते हैं तो वो फिर एक जंग जदाल की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। पोलराइजेशन बढ़ती चली जा रही है और उसमें अब भी सूरत हाल ये है कि एक जमात जो है अगर वो इस वक्त इक़्तिदार से बाहर है, पूरे मुल्क में इक़्तिदार से बाहर नहीं है, अगर आप PTI की बात करें तो वो पूरे मुल्क में इक़्तिदार से बाहर नहीं है, कौमी असम्बली में भी मौजूद है, बाकी असम्बलियों में मौजूद है और KPKA में एक सूबे में इंतहाई अहम सूबा और वो सूबा जो कि इस वक्त फ्रंट लाइन पर है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वहाँ जो है PTI ही की हुकूमत है। लेकिन इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा जाता और बाकायदा फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो इस अंदाज से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अल्लाह मान, मतलब एक अब सोशल मीडिया पे एक चल रही है, एक वीडियो चल रही है जिसमें दिखाया जा रहा है, वो वीडियो पुरानी है कि जनाब वो टैंक दाखिल हो गए जी अपना और वो देखें और इस पर बड़ा वहाँ पे जो है जोश और जज्बा पाया जाता है अवाम में। भाई वो टैंक जो है वो क्या अवाम पे टैंक चलाने के लिए दाखिल हुए, अवाम पे गोलाबारी, खुदा का खौफ करें यार। मतलब है कि आपके यहाँ फ़ौज की नकलो हरकत है, एक्सरसाइजेज़ हैं, मशक़ें हैं जंगी, वो जारी रहते हैं। छावनियों में से बाकायदा आपकी फ़ौज बाहर भी जाती है, टैंकों की जिस वक्त वो एक्सरसाइज होती है वो भी टैंक भी बाहर जाते हैं और जब वो एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है तो वो वापस आते हैं। देखें तो अपनी फ़ौज के अंदर मशक़े का सिलसिला, मशक़ें जो है वो तो जारी रहती हैं, वो तो कभी ख़त्म नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। देखिए अगर वो मशक़ें हैं तो आप फ़ौज के अंदर अपनी पेशा वाराना जो इस्तेदाद है उसका सही मायनों में मुजाहरा कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ एक्सरसाइज एरियाज़ हैं जी बिल्कुल है और वो उसके हिसाब से वो होता है। लेकिन अगर आप उसको भी ये बना लें कि जनाब, और फिर आप बहुत कुछ सोशल मीडियाज़ ऐसे भी हैं चूँकि हम देखते रहते हैं, उसमें यकीन करें कि इंतहाई पढ़े लिखे लोग वो जिस तरह तबसरे कर रहे होते हैं वैसे होता है कि जैसे हम फ़ौज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अब दोबारा हम थोड़ा सा हो रहे हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे था, हाँ जी, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात की थी, जो बात हुई और जिस तरह का मैसेज दिया गया और जिस तरह का जवाब दिया गया, जो सवाल उठाए गए, हम उस पर बात कर रहे थे। उसमें जो ISPR ने 2-3 चीज़ों पर बड़ी बात की। एक तो हम बात खुल के करते हैं कि जी जनरल फैज़ साहब के हवाले से कि जी उनके ख़िलाफ़ जो फील्ड कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई हो रही है उसका जो स्टेटस है वो क्या है और उसमें किन किन लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है या हो सकते हैं, या वो किस स्टेज पर है, या और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है या अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये सब बातें हुई। उस पर एक वाज़ेह जवाब आया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी शख्स आर्मी जो एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी में और उसकी अगर उसने कुछ खिलाफ वर्जियाँ की हैं तो उसको जवाब देना पड़ेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई शफाफ अंदाज में होगी और आगे बढ़ रही है। उसमें जो भी शामिल होगा उसे नहीं किया जाएगा। नाम अच्छा उन्होंने कोई नाम नहीं लिया किसी भी, हालांकि उससे सवाल भी हुआ। हाँ देखिए, बात ये है कि पूरी दुनिया में एक फ़ौज जो है एक पेशा वाराना अदारा है पूरी दुनिया में, ठीक है। अब उसमें भी इंसान ही होते हैं, जब इंसान है तो उनसे कोताहियाँ भी होती हैं, उनसे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी होती है। लेकिन एक इस तरह का इदारा जो है ये उसका इस्तेकाम और मुस्तहकम रहना इस बात से मशरूत है कि अगर उसके अंदर कोई जो है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम यहाँ बैठ के बाकी हर चीज़ पे तो तबसरे करते हैं, फ़ौज पे भी तबसरा करते हैं, लेकिन फ़ौज तो उसका जवाब नहीं देती। फ़ौज के अंदर अगर किसी अफसर ने या किसी जवान ने अगर उसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, उसने जो फ़ौज के नॉर्म्स हैं, कानून हैं, उनके जो उसकी खिलाफ वर्जी कर दी है, तो आपका ख्याल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? अच्छा, किसको पता है किसको पता है कि देखें उसमें उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौज में ज़ाती मफादात को आगे बढ़ाने वालों के ख़िलाफ़ बात होती है और जवाब भी उनसे लिया जाता है, उन्हें जवाब देना पड़ता है। ये बात तो आप जो बात करें वही देखिए, अगर एक फ़ौजी अफसर जो है, चाहे वो निचली सतह पे जवान है या चेन ऑफ कमांड में वो चाहे लेफ्टिनेंट जनरल है,
अगर उससे कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो गई है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि फ़ौज के अंदर जो खुद इत्तसाबी का निज़ाम है वो इतना मौसर है, और इसकी माजी में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। वो जैसे वो सिंध का एक वाक़या था जिसमें एक ख़ानदान को एक मेजर साहब ने अपने ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से उनको उनकी कत्ल गारत गरी की, तो सज़ा हुई ना जी, और कोई उस पर रियायत नहीं की गई। इसी तरीके से यहाँ कत्ल गारत गरी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर रियासत के ख़िलाफ़ अगर किसी जगह पे फ़ौज ये समझती है कि उनके किसी अफसर ने जो है वो रेड लाइन क्रॉस की है और उसको बाकायदा अदारे को उससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, तो वो फ़ौज का निज़ाम है, उन्होंने उसको जो है उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करनी ही करनी है। मैं और आप कौन होते हैं उसके पे सवाल उठाने वाले। अच्छा, एक और चीज़ है, उन्होंने वाज़े कर दिया कि अगर इसमें कोई सिविलियन भी साथ मुलव्वस है तो साफ ज़रा फिर उसका भी होगा, उसका भी ट्रायल होना चाहिए और होगा भी सही। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? फिर उन्होंने ये भी कहा है कि वो बाकायदा जिस वक्त वो एक हो जाएगा तो उसके बाद फिर अदालतें मौजूद हैं ना, अपील, राइट ऑफ अपील उनके पास राइट होता है, अपील चीज़ें तो होगा ना। बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, आपने हमसे बात की। यौम दिफा पर जो पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, यकीनन बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान की कामयाबी हैं, फ़ख्र हैं, लेकिन जो आने वाले चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के दिफा के हवाले से, उन्हें भी पाकिस्तान की कौम, हुकूमत और मजमूई तौर पर हम रियासत को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जिसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।